Good morning, everyone. We are just waiting for other participants to join in, and then we shall be beginning with the webinar. Please be patient till then.
We are waiting for more participants to join in. We'll be beginning in 5 minutes. Please be patient. Good morning, everyone, and welcome to today's session. It gives me immense pleasure to welcome you all to one of its kind webinar on enlightenment on stock market and investment, organized by none other than Golden Group of Institutions. GGI has been serving society since 1960, brainchild of Shri Dinanath Mahajanji, and efficiently being managed under the leadership of Chairman Dr. Mohit Mahajan and Managing Director Engineer Raghav Mahajan. It comprises of Golden College of Engineering and Technology, Golden College of Management and Technology, Golden Polytechnic College, Golden College of Education, Golden Senior Secondary School, Sri Nangali Academic Public School. Golden Group has Golden Group has been set up with a clear mission to pursue excellence in the field of education and to adhere to the high of academic region in all its work. Our academic philosophy revolves around the fact that practical knowledge and creative minds combined together can completely change economic and political destiny of the nation. And adhering to this philosophy, we have not compromised with the ritual of providing quality education even during the pandemic. Number of competitions have been organized in the field of art, technology, and other curricular and academics affairs. Placement and Training Cell has worked with same zeal and conducted various placement drives. We have also hosted the 6th Mega Job Fair in partnership with Punjab government.
We are the only institute in the entire region who have conducted more than 20 webinars on various social and technical issues so far. International webinars have also been organized by the institute. Now, I would like to hand over to our revered principal, ma'am, Golden Institute of Management and Technology, Dr. Jaspinder Kaur, to address our guest for today and welcome all the participants who have joined us today for this session. Over to you, ma'am. Thank you, Ankita. Good morning all. I, Dr. Jaspinder Kaur, welcomes you all present here. Our worthy chairman, Dr. Mohit Mahajanji, our director, engineer Raghav Mahajan, faculty members, and dear students. It's a matter of great privilege for all of us that Mr. Veerpal Singh, the key speaker of today's event, is among us. He is a well-renowned personality in the field of stock market. Students, it's quite interesting to know all about stock market, like how it works, how the Sensex goes ups and down, what are the blue chips companies, what are fundamental and technical analysis, how, when, and where to invest to get the maximum benefits. For that purpose, for that queries, today we have market expert among us, that is Mr. Veerpal, who will tell us all about the stock market. I hope this session would be very informative and knowledgeable for all of us. Now, with these few words, I would like to hand over to mic to Mrs. Ankita for the further proceeding. Thank you. Thank you so much, ma'am. Just a little housekeeping before we get started. If you have any questions during the presentation, please type them into the question box on your control panel. We will bring them at the end of the webinar. अगर किसी के पास कोई भी questions हैं, किसी भी तरह के queries हैं, please write them in the chat box. At the end of the session, we'll be taking all the questions from our speaker for today. So, now, without any further ado, we will turn time over to our presenter for today, Mr. Veerpal Singh, who is actively working as a derivative expert, portfolio manager, and investment analyst. He has more than 14 years of experience in the financial markets, and he had worked with top groups in the financial industries. Mr. Veerpal Singh is an MBE, Master of Business Economics in Finance, and an ecumenical technical analyst, tracking virtually all major markets across the globe like USA, European, Canadian, and Asian market. He has been awarded by NSE for Capital Market Module. We would like to hear it from you, sir, all the insights about the stock market. Over to you, Mr. Veerpal Singh, sir. Thank you, Ankita, and good morning all. And a special thanks to the Golden Group of Institution and the Chairman Sir, MD Sir, and Dr. Jaspinder for organizing such a good event on stock market. So we will begin with a small introduction, and today we will cover only the basics and some advanced live markets exposure to your participants in this webinar. So I would like that we can start with the basics of stock market and investing, like how any person can start his uh, financial planning from the beginning, and how can he get benefits from the stock markets. So I would like to share some presentation with you guys. So let's begin. Hmm. I think your screen sharing is not allowed, Ankita. Just a second, sir. I'll just see to it. So please try now. Okay. My screen is available for all now. Yes, sir. Okay. So the today, basics, and we will cover
basics and the some advanced level of stock market in a later part. So let's begin. I will start with my profile, like what I think Ankita already told that about my profile. So I will not take much time on my profile. So I do have only 14-year experience in stock market, and I had been seen on CNBC Awaaz and Ticker TV financial media channel. Apart from that, I work for India's number one investment banker, JM Financial. So I have a big exposure in handling big clientele or ultra HNI institutions clients in the practical world. So today I will only just cover the basics for the students, so they can also understand, and I will also cover some point like where there is a career opportunity after pursuing BCom or MBA whatsoever they are doing it. And let's begin with the small thing. So my question starts from why there is a need of investment. So it is very simple that the money you earn is a partly spent and the rest saved for the meeting the future expensive. So instead of keeping the saving idle, you may take to use saving in order to get return on in the future. This is called investment basically. मैं थोड़ा हिंदी में अगर बोलूं, I think they should also understand. Is it, Dr. Jaspinder? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइक अगर हम इन्वेस्टमेंट कोई भी हमारा आइडल मनी पड़ा है, अगर हमें उसे हम सेव करना चाहते हैं कि हमें फ्यूचर के एक्सपेंसेस को मीट कर सकें, सो हम उसको इन्वेस्टमेंट अपनी लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सो द ओनली नीड टू इन्वेस्ट इज टू अर्न गुड रिटर्न ऑन द आइडल रिसोर्सेज. जो हमारे पास आइडल कैपिटल पड़ा होता है उसके ऊपर हम जो रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं. ये इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है. लाइक अगर हम उसको देखना चाहें कि आइदर वी इन्वेस्ट इनटू द रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज, शेयर्स, एफडीज, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, एनीथिंग इट कैन बी. सो इट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉड इन्वेस्टमेंट. तो इसका नीड हमें क्यों रहती है? बिकॉज टू जनरेट सम स्पेसिफिक सम ऑफ मनी फॉर द स्पेसिफिक गोल इन लाइफ. सपोज अगर मेरा कोई गोल है लाइफ में कि यार मैं आज अगर मेरी एज 20 ईयर्स है, सो बाय 40 और 50 ईयर्स आई वांट टू be holding a big house or a big car. So I should start from the beginning of my life. I think mostly Indians start his life from I think around 20 or 25 after completing their studies. So this is called a smart investment. So to make a provision for uncertain future. हम इसको इन्वेस्टमेंट को क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये होता है कि अगर आज हम इन्वेस्टमेंट कोई अपना सेव कर रहे हैं, आइदर वी आर बाइंग सम प्रॉपर्टीज, आइदर वी आर बाइंग फॉर एनी गोल्ड और एनी अदर कमोडिटीज, और आइदर वी आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स. सो हमें कोई फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आती है तो हमारी जो इन्फ्लेशन को बीट करके हमारा जो कैपिटल है इट विल ग्रो. So there is a need of investment in our life. Everybody in these days need some sort of additional income. So for that purpose we need to invest into the different segment of the markets, and there are many things are available to invest, as it's totally depends like how we can invest with our risk taking appetite. So when to start investing? It is quite simple that the sooner anyone can start investing is always better. I told you before also कि अगर हम 20 साल की एज में भी स्टार्ट करते हैं तो हम चाहे छोटा छोटा 500 रुपीज से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, पुटिंग द मनी इनटू डिफरेंट सेगमेंट. आइदर यू पुट इनटू द बैंक्स, आइदर यू पुट इनटू any mutual funds or any shares. It requires study, obviously. I am not saying go to the market and start investing. I just say कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसको अपनी अर्ली स्टेज में अगर जितना स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आपको एक्यूमुलेटिंग द प्रिंसिपल जो हमारा स्टॉक मार्केट में काम करता है कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में और डिफरेंट इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ में वो एक बहुत बड़ा कॉर्पस इंक्रीज हो जाता है. तो आज अगर आप सपोज करो 100 रुपीज की सेविंग कर रहे हैं, either in any instrument, either you invest in banks,
कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, कहीं भी डालते हैं, तो आपका एक अमाउंट बनना शुरू हो जाएगा. So it is a very good habit in US or Canada. People start investing from the beginning. So we people take it little light because we are on the spending part. कि हम देखते हैं कि चलो यार जो है उसको पहले अपने पास ज्यादा मत मतलब स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में और बैंक्स में ना रखा जाए. आइदर वी इंडियंस और वी prefer to invest in the properties or the gold. So gold already given very good returns. If I talk about that is on a lighter notes. So let's continue with the slides and the topics. So the next when to start investing. The number one, 3 golden rule for investors all: invest early, invest regularly, invest for long term, not for short term. जो मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेस्टर के 3 ही गोल होते हैं, वो गोल्डन रूल ये हैं आपके: आप स्टार्ट करें इन्वेस्टिंग अपनी इनिशियल स्टेज पे, और उसको रेगुलरली रेकरिंग बेस पे आप उसको थोड़ा 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 उसमें कुछ ना कुछ आप डालते जाइए. कोशिश कीजिए कि आपकी सेविंग हो और अर्ली स्टेज से हो. और हमेशा लाइफ में कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करें. चाहे वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ भी हो आपके. So where to invest? One may invest into the physical assets. Physical assets में हम लेते हैं जैसे रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी होगी, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी होगी, कमोडिटीज होगी. कमोडिटीज में आइदर क्रूड, मेटल्स, काफी सारी चीजें आती हैं. ये एक फिजिकल एसेट्स है. हम इसे कैटेगराइज करते हैं स्टॉक मार्केट मेनली फॉर फाइनेंशियल एसेट्स. सो फाइनेंशियल एसेट्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक्स, small financial assets such as fixed deposit with banks, savings instruments, post office, insurance, provident fund, pension funds, सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, ये सब हमारे फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं. तो देयर आर 2 वे ऑफ इन्वेस्टमेंट. फिजिकल एसेट्स में आपका कोई भी चीज जो फिजिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेंजिबल हो, तो वो आपका फिजिकल एसेट्स में आएगा. लाइक रियल एस्टेट हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड जो जैसे हमने बताया. और उसके बाद अगर हम कोई भी शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम वर्चुअली मतलब रख सकते हैं, लाइक इन बैंक्स हमारा पैसा वर्चुअली पड़ा होता है बट हम जाके उसे फिजिकली ले भी सकते हैं. सो फाइनेंशियल एसेट्स एंड फिजिकल एसेट्स. सो नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. सो शॉर्ट टर्म में अगर देखते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट्स लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं. सपोज यू पार्क योर मनी कि चल यार मेरे पास कहीं से कोई अर्निंग आया है, सो मेरे पास ये मैं अपने बैंक्स में डिपॉजिट कर देता हूँ. सो शॉर्ट टर्म के लिए मैं बैंक्स में डिपॉजिट कर देता हूँ कि चलो अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी इन लाइफ में देन आई विल टेक द अमाउंट फ्रॉम द बैंक. सो मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स भी रहते हैं. जैसे ये स्टॉक मार्केट में एक डेट फंड का कंसेप्ट रहता है, जो सेविंग बैंक अकाउंट्स जो होता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं. तो वो एक हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ये गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं. सो उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक्स ऑलरेडी डिस्कस. सो लॉन्ग टर्म में हम बेसिकली जाते हैं पोस्ट ऑफिस की कोई भी सेविंग्स होती हैं जो गवर्नमेंट रन करती हैं. प्रोविडेंट फंड्स में पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, पीपीएफ अकाउंट्स होते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म में होते हैं. आप इसमें एक सर्टेन अमाउंट जो हर मंथ आप अपनी सैलरी से डिडक्ट कराते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, ये आप एक टाइम के बाद ही उसको विड्रॉ कर सकते हैं. ये नहीं है कि आप, वैसे तो गवर्नमेंट अलाउ कि आप थोड़ा सा पार्शियल इसमें से ले सकें, वो प्रोविडेंट फंड में होगा, बट आप पीपीएफ में जो पैसा रखते हैं वो एक सर्टेन ईयर्स के बाद ही आपको वापस मिलता है. सो दैट इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, पोस्ट ऑफिस सेविंग में, ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगी आपकी, राइट. एंड किसी भी आप बॉन्ड में, गवर्नमेंट के किसी भी बॉन्ड में, परपेचुअल बॉन्ड्स में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. लॉन्ग टर्म में आप अगर मान के चलिए कि 5 साल से 10 साल का आपका टेन्योर होना चाहिए. ये नहीं कि आज आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 1 महीने बाद अगर बॉन्ड में अगर पैसा चाहिए, 2 महीने बाद चाहिए, तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. बॉन्ड्स आर फॉर द लॉन्ग टर्म.
एंड द सेम वे म्यूचुअल फंड में आप रेकरिंगली इसकी चाहे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे हम सिप बोलते हैं। वो काफ़ी फेमस भी, आई थिंक most of them are aware of, I think these days, because social media and the internet is growing very fast in India. So mutual funds are also for long term, not for the short term. एंड स्टॉक मार्केट में देखिए दो तरह से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जैसे सपोज अगर मेरे को आज अगर कोई फंड की रिक्वायरमेंट है, मैं एक बहुत मीडियम एंटरप्राइज रन करता हूँ, तो प्राइमरी मार्केट क्या करता है, जब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसकी जो लोन लेने की कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी मतलब कम होती है, तो वो पब्लिक में चला जाता है अपना इशू लेके, अपनी इक्विटी लेके। तो वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आता है मार्केट में, और वो मार्केट से पैसा लेके उसको सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट कर देता है, जो कि हम नॉर्मली सुनते हैं कि आज रिलायंस का शेयर ऊपर हो गया, एचडीएफसी बैंक का शेयर ऊपर हो गया, नीचे हो गया। सो वो एक सेकेंडरी मार्केट है। बट जब वो उसको पैसा, किसी प्रमोटर को पैसा चाहिए होता है, तो वो सबसे पहले एक इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास आता है कि मेरे को पैसा रेज करना है मार्केट में, मेरे को आप क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उसकी फाइनेंशियल्स देखने के बाद उसकी 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 जो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका जो CAGR जिसको हम बोलते हैं, उसका पास्ट मतलब देखने के बाद एक प्राइमरी मार्केट में उसकी लिस्टिंग कराई जाती है। सो वो पैसा जो रेज करता है उसके एवज में वो आपको अपनी इक्विटी शेयर होल्डिंग देता है। तो स्टॉक मार्केट में प्राइमरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी को मार्केट में आना है तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही वो मार्केट में आ सकती है। चाहे वो आज की डेट में कोई भी कंपनी लिस्टेड है, वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही पैसा रेज करने के बाद मार्केट में लिस्ट होती है। तो देयर इज अ स्टॉक मार्केट इज अ सेकेंडरी मार्केट। सो ट्रेड स्टॉक फॉर लिस्टेड कॉर्पोरेशन मतलब जो भी रहते हैं हम करते हैं। प्राइमरी मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड द चैनल फॉर सेल्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी। प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट टू रेज रिसोर्सेज टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड और डिस्चार्ज ऑफ सम ऑब्लिगेशंस। सो वही जो मैंने आपको बताया कि उसको जैसे पैसे का रिक्वायरमेंट था, तो वो प्राइमरी मार्केट में आया, कोई भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो उसने अपना पैसा मार्केट से रेज किया और उसके बाद उसने अपना शेयर लिस्ट करा दिया NSE पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, या BSE में। सो कई बार दोनों जगह भी लिस्ट होता है। सो दे में इशू अ सिक्योरिटी एट द फेस वैल्यू। जैसे अब हमारा फेस वैल्यू स्टॉक का रहता है, जो आपने अपना आई थिंक बीकॉम में भी पढ़ा होगा, तो उसमें फेस वैल्यू हर स्टॉक का रहता है। जैसे 10 रुपीज किसी का Is I am audible? Hello? Yes, sir, you're audible now. Okay. ओके। सो और डिस्काउंट और प्रीमियम पे भी जैसे हम उसको शेयर को लिस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज को, और उसके बाद कोई भी अगर डेट भी आता है आजकल, जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी आते हैं, वो भी मार्केट में आते हैं। तो वो एक लेटर एडवांस पार्ट है, देन हम लेटर स्टेज में डिस्कस कर सकते हैं। दे में इशू अ सिक्योरिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। तो प्राइमरी जो IPO आएगा वो इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा रेज कर सकता है और डोमेस्टिक से भी कर सकता है। ये तो उसका एक फंक्शनैलिटी हुआ, राइट। वाई कंपनी नीड टू इशू अ शेयर टू द पब्लिक। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई उनको पब्लिक पे शेयर क्यों देने। सपोज आई ओन अ कंपनी और मैं अपने कंपनी के शेयर क्यों दूं किसी को, राइट। तो यहाँ पे हमने उसको बताया है इस स्लाइड में कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजुअली स्टार्टिंग प्राइवेटली बाय देयर प्रमोटर। कोई भी प्रमोटर होता है जो कंपनी का, वो स्टार्ट करता है अपनी कंपनी को, ठीक है। उसके बाद उसको ये होता है कि मेरे को कैपिटल चाहिए, बोरोविंग, जैसे उसको हाउएवर द प्रमोटर्स कैपिटल एंड द बोरोविंग फ्रॉम द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन may not be sufficient for setting up or running their businesses over a long term। तो कोई भी प्रमोटर जब उसको फील होता है कि मेरे को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सफिशिएंट फंड नहीं मिल रहा, ठीक है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोन और सर्टन अमाउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट कैन बी गिवन
by the banks and the financial institutions to any promoter. Either he is into the hospital, either into the gas business, any business or IT business, any education business, any business. So उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा चाहिए होता है तो वो अपनी कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर बिजनेस. तो प्रमोटर क्या करता है, मार्केट में जाके और लोगों को पब्लिक अपना इशू लाने के लिए एक्सचेंज में एक अपनी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टिव देता है, जिसमें वो बोलता है कि मेरे को सेबी अलाउ करे, जो रेगुलेटर है, कि मैं अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर पब्लिक के लिए दे सकूं. सो जब वो पब्लिक में आता है तो पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है. सब्सक्रिप्शन लगता है. जैसे हम बोलते हैं कि आज हमने इस कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है. सो आई थिंक somebody is raising their hand. Yeah, tell me. Hello. I think Jaspal or someone is raising, ma'am. Can you connect with them? Hello. Sir, in case anybody will be having question, they'll be writing in the chat box and we'll address them at the end. Okay, that's okay, because somebody is raising their hand. They can ask question in the chat box and we'll be handling all the queries at the end. No problem. So पब्लिकली उसको अपना शेयर जो लिस्ट करवाना है वो पब्लिक के लिए लेके आता है और अपनी इक्विटी उनको जो पैसा वो रेज करता है उसके एवज में उसको कंपनी के शेयर्स अलॉट कर देता है. राइट. सेकेंडरी मार्केट वही जो उसका नेक्स्ट स्टेप रहता है कि फर्स्ट वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आया, उसके बाद उसने अपने शेयर जो है वो एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिए. अब किसी ने भी जो शेयर वो खरीदा है वो अब लिक्विड है. कोई भी पर्सन जिसका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होगा वो सेकेंडरी मार्केट में जाके उस कंपनी के शेयर अब पूरे जब भी मार्केट ओपन रहेगा उसमें बाय या सेल कर सकता है. सो सेकेंडरी मार्केट में बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट में वो लोग कैसे अपनी कैपिटल रेज करने के बाद शेयर लिस्ट करके उसको सेकेंडरी मार्केट में उसका वैल्यूएशन रहता है. बिकॉज जब उसका वैल्यूएशन हो जाता है, एक प्रमोटर कोटे का शेयर रहता है, उस पे भी प्रमोटर को अपना फंड रेज हो जाता है या उसको फंडिंग अवेलेबल हो जाती है. सो दैट इज आल्सो अ पार्ट. टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप ऑफ इन्वेस्टर एक तो रहता है जी नीड बेस्ड, लाइक एक अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रहता है. बट हम जो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पार्टिसिपेंट व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ ये टाइप ऑफ इन्वेस्टर क्या रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेकुलेटर रहते हैं जो मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं सेकेंडरी मार्केट में. ठीक है, वो स्पेकुलेशन के लिए वो मार्केट में आते हैं और स्पेकुलेट करके अपना रिटर्न बनाते हैं. हेजर्स होते हैं, जैसे हेज फंड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स हैं जो सिंगापुर बेस्ड, न्यूयॉर्क बेस्ड या और बड़ी बड़ी कंट्रीज में लंदन बेस्ड वो हेज फंड्स रहते हैं. वो डिफरेंट मार्केट्स में, जैसे हमारी इंडिया की मार्केट जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो वो हेज करने के लिए अपनी ग्लोबल पोजीशन को वो एक्ट एज ए हेजर कहलाते हैं. कि उन्होंने सपोज अगर अपनी इधर यूएस में उन्होंने अपनी पोजीशन लॉन्ग की हुई है, बट इमर्जिंग मार्केट में कोई अनस्टेबिलिटी आ गया तो वो अपनी पोजीशन हेज करने के लिए इधर अपनी रिवर्स पोजीशन क्रिएट करते हैं. वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा आई थिंक, वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा आप लोगों के साथ. आर्बिट्राजर क्या होता है? आर्बिट्राजर होता है मार्केट में वो पर्सन होता है जो मार्केट की जो बाय और सेल, मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगा, का जो डिफरेंस होता है उसका बेनिफिट लेने के लिए. राइट. ये आर्बिट्राजर का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं. एक बिड और आस्क होता है मार्केट, ये लाइव मार्केट चल रही है गाइस. राइट. तो कोई भी शेयर का हम जैसे देख रहे हैं, जैसे रिलायंस का ये शेयर है 1903 रुपए और 1904 रुपए 40 पैसे चल रहा है. तो ये जो इसमें 50 पैसे का डिफरेंस है, वो ऑपरेटर क्या करेगा, दो एक्सचेंजेस में जिसको आर्बिट्राज करना है, एक मिनट आई थिंक आर्बिट्राज में जो ये प्राइस डिफरेंस है वो उसको मीट करने के लिए डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, ये एनएससी में इसका रेट है और हम इसका अब बीएससी में भी रिलायंस का रेट लगा रहे हैं. तो देखिए आप इसमें
लगभग बराबर चल रहा है। तो कई कई जैसे ही इसका थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो आर्बिट्राइजर एक एक्सचेंज एनएससी में माल खरीद लेगा और बीएससी में बेच देगा। तो वो जो 1-1.5 रुपए का उसको बेनिफिट रहता है वो आर्बिट्राइजर उसको यूज करते हैं लाइव मार्केट में। तो लाइव मार्केट जैसे अभी इसमें कोई भी डिफरेंस पॉइंट वाइज आता है, इसमें मार्जिन ऑफ अमाउंट कम होता है बट पोजीशन जो होती है वो लार्ज स्केल पे होती है आर्बिट्राज में। सो उसके बाद हमारा स्टॉक मार्केट में देखिए दो तरह के एनालिसिस होते हैं आज के टाइम में। पहले भी यही थे, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग कवर करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट्स होगी, कंपनी के प्रॉफिट्स हो गए, राइट, और उनकी वो सारी जो हम लोग स्टूडेंट सब हम पढ़ते हैं कि बीकॉम में कि कौन सी रेशियोज हैं, वो सारा इसमें कवर होता है फंडामेंटल एनालिसिस में कि उसकी डेट कवरिंग रेशियो क्या है, उसकी करंट रेशियो क्या है, राइट। सो बहुत सारी रेशियोज और बहुत सारे जो उसके एस्पेक्ट होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। वैल्यूएशंस होती हैं, डिस्काउंटिंग होता है, उसका फेयर वैल्यू निकालने के लिए स्टॉक्स का हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। सो वो फंडामेंटल एनालिसिस में आता है, दैट इज अ थियोरेटिकल पार्ट। ये बहुत बड़े जैसे बाय साइड में जो भी आपके बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स हायर करते हैं जो उनके लिए फंडामेंटल रिसर्च करती हैं डिफरेंट सेक्टर्स पे। टेक्निकल एनालिसिस क्या है मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट में जो प्राइस एक्शन से रिलेटेड रहता है। टेक्निकली उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में आती है, जो बेसिकली थोड़ा बहुत क्वांट और स्टैटिस्टिक्स मिला के, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है इसमें, कोरिलेशन रिग्रेशन जो हम पढ़ते हैं, तो वो सारे एस्पेक्ट इसमें आते हैं कि हाउ दे कैन मेक मूविंग एवरेजेस, एवरीथिंग दे कवर। सो जो हम स्टडी करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में वो बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल है मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली। सो उसके बाद स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए अलग अलग एस्पेक्ट हैं, जैसे कि इक्विटी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग में आप कोई भी कंपनी का, जैसे अभी मैंने आपको रिलायंस का शेयर लाइव दिखाया, तो उसमें लाइव आप मतलब बाय उस शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। वो इक्विटी इन्वेस्टिंग चाहे वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे जो टैक्सेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। सो आजकल काफी फेमस है, बट आई विल नॉट एडवाइज एनीवन टू ट्रेड इन द मार्केट। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी क्लियर, यू जस्ट लर्न एंड मेक अ करियर। It is a very good career, because most of the banks, stock brokers are giving very good amount of money to the employees of their companies. So उसके बाद क्वांट ट्रेडिंग बेसिकली यूज होता है मैथमेटिकली। दे क्रिएट अ वेरी, आज की डेट में अगर आप यूएस में या कहीं भी किसी भी जगह आप अगर स्टडी अगर आप मतलब जॉब के लिए सर्च करेंगे, सबसे हाईएस्ट पेड जो जॉब है वर्ल्ड की वो क्वांट ट्रेडिंग में आती है। अगर आप वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पेड जॉब अगर देखेंगे, मोस्ट जो एवरेजली है, तो क्वांट ट्रेडिंग के लिए बहुत हैवी सैलरी पे करता है यूएस और लंदन बेस्ड जो या सिंगापुर बेस्ड जो बड़े बड़े हैकर्स हैं और बहुत बड़े बड़े जो एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडर हैं, वो बहुत हाई सैलरी आपको पे करते हैं क्वांट ट्रेडिंग में। सो एल्गो ट्रेडिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, दैट आई विल डिस्कस लेटर। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हैं तो क्वांट ट्रेडिंग इज समथिंग। इसमें आपको ये क्वांट में ये है, एल्गो ट्रेडर के लिए आपको मैथमेटिक्स में अच्छा होना जरूरी है और आपको आई कैन से मैथमेटिक्स और कोडिंग में, जिसको मैथमेटिक्स और कोडिंग दोनों चीजें आती हैं, ही कैन मेक हिज करियर इन दिस फील्ड। मतलब प्रोस्पेरिटी इतनी आएगी क्योंकि ये बहुत हाई पे देते हैं इस फील्ड में। सो करियर इन स्टॉक छोटे लेवल से भी, जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप NISM का कैपिटल मार्केट, आई थिंक बीकॉम में ये सब लोग क्लियर करते ही होंगे। NISM का जो कैपिटल मार्केट मॉड्यूल है,
डेरिवेटिव मार्केट मॉड्यूल है, डीपी ऑपरेशंस है, यू गेट अ सर्टिफिकेशन। और जैसे डीपी ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे जो गर्ल्स हैं जो बैंक्स में जॉब ढूंढना चाहती हैं, तो जो उनके लिए एनआईएसएम का ये जो तीसरा मॉड्यूल है डीपी ऑपरेशन, दैट विल हेल्प अ लॉट फॉर द गर्ल्स टू गेट अ जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर। तो ये जो एनआईएसएम डीपी ऑपरेशन है, सीडिंग जो ऑपरेशन में चाहिए, तो एनआईएसएम स्टॉक मार्केट का इंस्टीट्यूशन है, इसके थ्रू आप ये डीपी ऑपरेशन का पेपर है क्लियर कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल इसकी कॉस्ट होती है, 1500 रुपये गवर्नमेंट इसका फीस लेता है। और इसके बाद आपको जब भी आप किसी बैंक्स में अप्लाई करते हैं तो बहुत इजीली आपको जॉब मिलने के चांस, अगर आपका डीपी ऑपरेशन क्लियर है, तो गर्ल्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि दे कैन गेट अ सिटिंग जॉब इन द बैंक्स। So that is very important for every student to clear this in future to make his career. So job opportunities तो देखो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जितने बैंक्स हैं एवरीबडी इन्वेस्टिंग, और आप किसी भी बैंक्स में जाइए, आइदर उनका जो इंश्योरेंस फील्ड है वो भी इन्वेस्ट अगर करते हैं तो वो भी स्टॉक्स मार्केट में करते हैं, चाहे उनका म्यूचुअल फंड है किसी बैंक्स का, वो भी उनका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टॉक मार्केट में आता है। स्टॉक ब्रोकर जो बड़े हैं उनका इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी डायरेक्ट इनटू द स्टॉक मार्केट है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में जैसे आपके म्यूचुअल फंड हाउस आ गए, तो वो भी इन्वेस्टमेंट जो वो स्टॉक मार्केट में आता है। तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज द प्लेस वेयर बैंक्स, स्टॉक ब्रोकर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हेज फंड्स, बड़े बड़े फंड हाउस, एफआईआईज, डीआईज अपना सारा पैसा इनपुट करते हैं। So guys, you can follow me also on Twitter. I always give a good some sort of information on my Twitter handle, that is @ProfitSignal9. So I will share most of the market details on my Twitter channel. So this is the live market exposure। मार्केट में जो अलग अलग सेगमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फार्मा सेक्टर है, जैसे उस फाइनेंस सेक्टर है, पीएसयू बैंक्स हैं, बैंकिंग्स हैं, ये उनके शेयर्स हैं। सर्विसेज सेक्टर में कौन कौन से शेयर्स आते हैं, इंफ्रा में कौन से आते हैं, पीएससी में कौन से आते हैं, टेक्नोलॉजी में कौन से आते हैं। So I think we are done with the small basics. So any question, I think I should start taking questions from the students so that they can understand well about me and the stock market. Thank you so much, sir, for giving me insights about the stock market. Thank I you. have a small question for you. For a person who has just started saving, say the savings are not much, so how can that person start with the stock market? How to begin by entering? How would you suggest? How to move about it? Ma'am, anybody can start. If I told in the presentation also कि अगर उसका saving कम भी है, so he can start from 500 rupees only. So that is In not, what form, sir? आप कोई भी कंपनीज के जो निफ्टी 50s हैं उसके कोई भी शेयर्स हैं वो स्टार्ट लेने, धीरे धीरे एक एक शेयर ही स्टार्ट कीजिए मैम। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, नथिंग लाइक दैट। So, for a risk-averse person जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, if I talk about them, तो उनको किस में जाना चाहिए? जैसे I am not ready to take much of the risk. There might be many people who are not ready to take risk because stock market is all about risk. तो उनको किस में जाना चाहिए? उनको मैम मोस्टली अगर वो बहुत सारा रिस्क अवर्स है और कंजर्वेटिव उनका अप्रोच है अपना इन्वेस्टिंग को लेके, तो आई वुड सजेस्ट कि उनको पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, या डेट फंड, लिक्विड फंड में पैसा रखना चाहिए। दे शुड नॉट गो फॉर द स्टॉक मार्केट। दिस इज बेसिकली मेंट फॉर द आइडल मनी। Somebody have idle money, he want to generate money out of money. So stock market is for them. He can start if he want to, suppose he has 100 rupees, right? And he wants to take a risk of 20% of his capital. He can put 20% of his capital in through mutual funds. वो slowly systematic investment के through भी market में आ सकता है, बट उसको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि suppose मेरा फाइनेंशियल जो रिस्क एपेटाइट है वो मे भी ज्यादा हो एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर। तो इट्स टोटली डिपेंड्स कि किसका रिस्क एपेटाइट कितना है।
Thank you, sir. Sir, one more question. Agar, suppose I have 1 lakh rupees, for example, now should I go in for only one thing or should I bifurcate the things into several, basket and then start investing? This is a very, very good question. Always invest in a diversified portfolio. हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि डोंट बाय 1 लाख रुपीज स्टॉक्स विद वन कंपनी. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट यू शुड इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कंपनी. सपोज अगर आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ऑयल एंड गैस की है, दूसरी बैंकिंग सेक्टर की है, तीसरी आपकी फार्मा सेक्टर की है. जैसे अभी रिसेंटली लॉकडाउन हुआ तो फार्मा स्टॉक एकदम शूट अप हुए. तो अगर आपका एक्सपोजर डिफरेंट, अगर आप डिवर्सिफाइड है अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा ग्रो करेगा एज कंपेयर टू सिंगल स्क्रिप्ट इन्वेस्टमेंट. Okay, thank you, sir. Students, if you have any kind of query or any question, please feel free to ask sir. You can unmute and ask him. Tab tak I'll ask my question. The thing is that I want to know about SIP, right? So SIP कहाँ से information gather करी जाए, knowledge कहाँ से उसके अंदर एक deeper knowledge, so that before practically investing into it हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सिप के लिए बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं. अगर आपको डीप थ्रू जाना है, आजकल ईटी नाउ है, और बहुत सारी और है, कैपिटल वाया है और वैल्यू इन्वेस्टिंग है. ये वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके उनके पास रिटर्न को भी चेक कर सकते हैं. उनकी स्कीम ने कौन सा रिटर्न दिया है, कितने परसेंट रिटर्न दिया है, सपोज उसने लास्ट 6 मंथ में कितना दिया है, वो आपको टॉप मोस्ट जो अच्छे परफॉर्मर. देखिए, सिप कभी भी आप लगाएंगे ना, तो उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके फंड मैनेजर का कितना टेन्योर है, वो कितना पुराना है और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है. जितना फंड मैनेजर पुराना होगा और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, तो फॉर्म अगर उसका फंड अच्छा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सिर्फ ऑलरेडी अच्छा कर रही है और अच्छा ही करेगी. तो मैं हमेशा देखता हूँ कि फंड मैनेजर का टेन्योर देखता हूँ कि वो कितना पुराना है इस इंडस्ट्री में. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Now I would like to invite our Managing Director, Engineer Raghav Mahajan, to present the vote of thanks. Over to you, Raghav, sir. Thank you, Ankita. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Respected Chairman, sir, principals, teachers, Mr. Veerpal Singh, and all my dear friends, very good morning to all of you. Today, our resource person, Mr. Veerpal Singh, has shared so much experience of his experience regarding the stock market, and he gave so much knowledge regarding the share and stock market. It is a very hot topic in the youth these days regarding stocks and investment. So I hope our students and our listeners has got so much knowledge regarding the stock market from this webinar. Even I have a little bit knowledge regarding the stock market these days. I have spent nearby 2 years in the Wall Street, nearby New York Stock Exchange. So I have seen like people making millions in one day and losing like millions in another day. So I advise all my participants today, please listen and have some research and do a lot of study before investing in any kind of investment or in a stock market, because it's a really risky market. Even Mr. Veerpal Singh has suggested and shared his experience. He has a wonderful experience of 14 years in the stock market, and even he has shared the same thing. Please listen and study regarding anything if you want to jump in the stock market. I am Raghav Mahajan on behalf of whole Golden Group of Institution. I'm glad that you have spent a time with us and shared your experience. I wanted to thank you on behalf of Golden Group of Institution for sharing your valuable time and experience with us. Thank you. Raghav. Thank you, Raghav. Thank you. It is my pleasure to have such an audience with you guys. That's great. I hope our students like this webinar and they gain a lot of information regarding the stock market and investment, because it's a hot topic these days for all the youths in the market. They are eagerly waiting
to jump on the trading and stocks, but they don't have like a proper knowledge regarding these activities. So I'm glad that we arrange this webinar on behalf of you, so that they can gain a little bit knowledge, and they can make their future if they want to become a good trader or something. Right, sir. Right. Thank you so much. Thank you so much, Raghav sir. Thank you, sir. It was glad to have you here. It was our honor to have you here. Thank you for providing us with all the insights. And with this, we are coming to an end for this session. And we promise to organize such webinars in the coming days as well. Thank you, sir. Thank you for joining us. Thank you, Ankita. Thank you, Raghav sir. Thank you, Dr. Jiswinder. Thanks. Thanks again. Thank you, students, for joining us today. And we expect the same